کا ہیڈ کوارٹر سوڈان اور مصر کی سرحد سے 4-5 میل اندر کی طرف تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے خیمے ایسی جگہ نصب کیے گئے تھے جہاں آندھیوں سے بچنے کی اوٹ تھی، مگر اس آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے تھے۔ گھوڑوں اور اونٹوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ آندھی رکی تو سپاہی خیمے وغیرہ سنبھالنے میں مصروف ہو گئے۔ ان 3 دستوں کا کمانڈر ایک ترک احمد کمال تھا۔ وہ ایک خوبرو اور گورے رنگ کا تنومند آدمی تھا۔ وہ بھی آندھی رکتے ہی باہر آ گیا اور ساز و سامان اور جانوروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ فضا گرد سے صاف ہو رہی تھی۔ ایک سپاہی نے ایک طرف اشارہ کر کے اسے کہا، کماندار، وہ گھوڑا اور سوار ہمارا تو نہیں؟ احمد کمال نے جواب دیا، ہم نے ابھی لڑکیوں کو فوج میں شامل نہیں کیا۔ وہ لڑکی معلوم ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، صاف نظر آ رہے ہیں۔ وہ اسی سپاہی کو ساتھ لیے دوڑ پڑا۔ ایک گھوڑا سر نیچے کیے نہایت ہی آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ اسے چارے کی بو آئی تو ہیڈ کوارٹر کے گھوڑوں کی طرف چل پڑا۔ گھوڑے پر ایک لڑکی اس طرح سوار تھی کہ اس کے بازو گھوڑے کی گردن کے ادھر ادھر تھے، اور لڑکی آگے کو اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ اس کا سر گھوڑے کی گردن سے ذرا پیچھے تھا۔ لڑکی کے بال بکھر کر آگے آ گئے تھے۔ احمد کمال کے پہنچنے تک گھوڑا وہاں بندھے ہوئے گھوڑوں کے پاس جا کر ان کا چارہ کھانے لگا۔ احمد کمال نے لڑکی کے پاؤں رکابوں سے نکالے اور اسے گھوڑے سے اتار کر بازوؤں پر اٹھا لیا۔ سپاہی سے کہا، زندہ ہے، فرنگی معلوم ہوتی ہے، اس کے گھوڑے کو پانی پلاؤ۔ وہ لڑکی کو خیمے میں لے گیا۔ لڑکی کے بال ریت سے اٹے ہوئے تھے۔ احمد کمال نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، پھر منہ میں پانی کے قطرے ٹپکائے۔ لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ 2-4 لمحے احمد کمال کو حیرت سے دیکھتی رہی اور اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احمد کمال کا رنگ گورا تھا، جسے دیکھ کر اس نے انگریزی میں پوچھا، میں فلسطین میں ہوں؟ احمد کمال نے سر ہلا کر اسے سمجھانا چاہا کہ میں یہ زبان نہیں سمجھتا۔ لڑکی نے عربی زبان میں پوچھا، تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ احمد کمال نے جواب دیا، میں اسلامی فوج کا معمولی سا کماندار ہوں اور تم مصر میں ہو۔ لڑکی کی آنکھیں ابل پڑیں اور وہ اس قدر گھبرائی جیسے پھر بے ہوش ہو جائے گی۔ احمد کمال نے کہا، ڈرو نہیں، سنبھالو اپنے آپ کو۔ اس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا، میں جان گیا ہوں کہ تم فرنگی ہو، میری مہمان ہو، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس نے ایک سپاہی کو بلایا اور لڑکی کے لیے پانی منگوا لیا۔ لڑکی نے لپک کر پانی کا پیالہ اٹھایا اور منہ سے لگا کر بے صبری سے پینے لگی۔ احمد کمال نے پیالہ اس کے ہونٹوں سے ہٹا کر کہا، آہستہ، پہلے کھانا کھا لو، پانی بعد میں پینا۔ لڑکی نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کھایا، پھر وہ کھانا کھاتی رہی اور پانی پیتی رہی۔ اس کے چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ احمد کمال نے ایک خیمہ الگ لگوا رکھا تھا جو اس کا غسل خانہ تھا۔ وہاں پانی کی کمی نہیں تھی۔ خیمہ گاہ ایک نخلستان کے قریب تھا۔ احمد کمال نے کھانے کے بعد لڑکی کو غسل والے خیمے میں داخل کر کے پردے باندھ دیے۔ لڑکی نے غسل کیا، لیکن وہ بہت ہی خوفزدہ تھی کیونکہ وہ اپنے دشمن کی پناہ گاہ میں آ گئی تھی، جہاں اسے اچھے سلوک کی توقع نہ تھی۔ اس کے ذہن میں بچپن سے یہ ڈالا جاتا رہا تھا کہ مسلمان وحشی ہوتے ہیں اور عورت کے لیے تو وہ درندے ہیں۔ اس خوف کے ساتھ اس پر حبشیوں کا، مگرمچھوں کا اور صحرائی آندھی کا خوف طاری تھا۔ اپنے ساتھ کی دونوں لڑکیوں کی موت، اور وہ بھی ایسی بھیانک موت، اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ اس نے غسل کرتے ہوئے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنے ناپاک وجود کو دھونے کی کوشش کر رہی ہے، جسے دنیا کا پانی پاک نہیں کر سکتا۔ اس نے قسمہ پرسی کی حالت میں تنگ آ کر اپنے آپ کو صورتحال کے حوالے کر دیا۔ احمد کمال نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ایسے حسن اور ایسے دلگداز جسم والی لڑکی معمولی لڑکی نہیں۔ مصر کے اس حصے میں ایسی فرنگی لڑکی کیسے آ سکتی تھی؟ اس نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ آندھی میں گھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ احمد کمال ایسے جواب سے مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے 3-4 اور سوال کیے تو لڑکی کے ہونٹ کانپنے لگے۔ احمد کمال نے کہا، اگر تم یہ کہتی ہو کہ تم اغوا کی ہوئی لڑکی ہو اور آندھی نے تمہیں چھڑا دیا ہے تو شاید میں مان جاتا، تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ اتنے میں اس سپاہی نے جو احمد کمال کے ساتھ تھا خیمے کا پردہ اٹھایا اور ایک تھیلا اور ایک مشکیزہ احمد کمال کو دے کر کہا، یہ اس لڑکی کے گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ احمد کمال تھیلا کھولنے لگا تو لڑکی نے گھبرا کر تھیلے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ احمد کمال نے تھیلا اسے دے کر کہا، لو، خود کھول کر دکھاؤ۔ لڑکی کی زبان جیسے گنگ ہو گئی۔ اس نے بچوں کے انداز سے تھیلا پیٹھ کے پیچھے کر لیا۔ احمد کمال نے کہا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں کہہ دوں کہ چلی جاؤ، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں تمہیں روکوں، لیکن ایک ایسی لڑکی کو جو آبادیوں سے دور اکیلی گھوڑے پر بے ہوشی کی حالت میں بھٹکتی ہوئی پائی گئی ہو، اسے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ میرا انسانی فرض ہے، مجھے اپنا ٹھکانہ بتا دو، میں تمہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حفاظت سے پہنچا دوں گا۔ اگر نہیں بتاؤ گی تو تمہیں مشتبہ لڑکی سمجھ کر قاہرہ اپنی حکومت کے پاس بھیج دوں گا۔ تم مصری نہیں ہو، نہ تم سوڈانی ہو۔ لڑکی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ جس مصیبت سے گزر کر آئی تھی، اس کی وحشت اور ہولناکی اس پر پہلے ہی غالب تھی۔ اس نے تھیلا احمد کمال کے آگے پھینک دیا۔ احمد کمال نے تھیلا کھولا تو اس میں کچھ کھجوریں، 2-4 موٹی موٹی عام سی چیزیں نکلیں اور ایک تھیلی نکلی۔ یہ کھولی تو اس میں سونے کے بہت سے سکے اور اس میں سونے کی باریک سی زنجیر کے ساتھ چھوٹی سی سیاہ لکڑی کی سلیب نکلی۔ احمد کمال اس سے یہی سمجھ سکا کہ لڑکی عیسائی ہے۔
उसे गालिबन मालूम नहीं था कि जो ईसाई मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए सलीबी लश्कर में शामिल होता है वो एक सलीब पर हल्फ उठाता है और छोटी सी एक सलीब हर वक्त अपने पास रखता है। अहमद कमाल ने उसे कहा कि इस थैले में मेरे सवाल का जवाब नहीं। लड़की ने पूछा, अगर मैं ये सारा सोना तुम्हें दे दूं तो तुम मेरी मदद करोगे? कैसी मदद? लड़की ने जवाब दिया, मुझे फलस्तीन पहुंचा दो और मुझसे कोई सवाल न पूछो। मैं फलस्तीन तक भी पहुंचा दूंगा, लेकिन सवाल जरूर पूछूंगा। अगर मुझसे कुछ भी न पूछो तो इसका अलग इनाम दूंगी। वो क्या होगा? घोड़ा तुम्हें दे दूंगी, लड़की ने जवाब दिया, और 3 दिन के लिए मुझे अपनी लौंडी समझ लो। अहमद कमाल ने इससे पहले हाथ में कभी इतना सोना नहीं उठाया था और उसने ऐसा हैरान कुन हुस्न और जिस्म भी नहीं देखा था। उसने अपने सामने पड़े हुए सोने के चमकते हुए टुकड़ों को देखा, फिर लड़की के रेशम जैसे बालों को देखा जो सोने की तारों की तरह चमक रहे थे, फिर उसकी आंखों को देखा जिनमें वो तिलिस्माती चमक थी जो बादशाहों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया करती है। वो तनोमंद मर्द था, कमानदार था, इन दस्तों का हाकिम था जो सरहद पर पहरा दे रहे थे। उसे रोकने, पूछने और पकड़ने वाला कोई न था, मगर उसने सिक्के थैली में डाले, सलीब भी थैली में रखी और थैली लड़की की गोद में रख दी। लड़की ने पूछा, क्यों? ये कीमत थोड़ी है? अहमद कमाल ने कहा, बहुत थोड़ी है। ईमान की कीमत खुदा के सिवा कोई नहीं दे सकता। लड़की ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अहमद कमाल ने उसे बोलने न दिया और कहा, मैं अपना फर्ज और अपना ईमान फरोख्त नहीं कर सकता। सारा मिस्र मेरे एतमाद पर आराम की नींद सोता है। 3 महीने गुजरे, सूडानियों ने काहिरा पर हमला करने की कोशिश की थी। अगर मैं यहाँ न होता और अगर मैं उनके हाथ अपना ईमान फरोख्त कर देता तो ये लश्कर काहिरा में दाखिल होकर तबाही बर्बादी फैला देता। तुम मुझे उस लश्कर से ज्यादा खतरनाक नजर आती हो। क्या तुम जासूस नहीं? नहीं, तुम यही बता दो कि तुम्हें आंधी ने किसी जालिम के पंजे से बचाया है या तुम आंधी से बचकर निकली हो। लड़की ने बेमानी से जवाब दिया तो अहमद कमाल ने कहा, मुझे तुम्हारे मुताल्लिक ये जानने की जरूरत नहीं कि कौन हो और कहां से आई हो। मैं कल तुम्हें काहिरा के लिए रवाना कर दूंगा। वहां हमारा जासूसी और सुराग रसानी का एक महकमा है, वो जाने और तुम जानो। मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। लड़की ने कहा, अगर इजाजत दो तो मैं इस वक्त जरा आराम कर लूं। कल जब काहिरा के लिए मुझे रवाना करोगे तो शायद तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूं। लड़की रात भर जागी हुई थी और दिन के ऐसे खौफनाक सफर की थकी हुई थी। लेटी और सो गई। अहमद कमाल ने देखा कि वो नींद में बड़बड़ाती थी, बेचैनी में सर इधर उधर मारती थी और ऐसे पता चलता था जैसे ख्वाब में रो रही हो। अहमद कमाल ने अपने साथियों को बता दिया कि एक मशकूक फिरंगी लड़की पकड़ी गई है जिसे कल काहिरा भेजा जाएगा। उसके साथी अहमद कमाल के किरदार से वाकिफ थे। कोई भी ऐसा शक नहीं कर सकता था कि उसने लड़की को बदनीयती से अपने खैमे में रखा है। उसने लड़की का घोड़ा देखा तो वह हैरान हुआ, क्योंकि घोड़ा आला नस्ल का था, और जब उसने जीन देखी तो उसके शुकूक रफा हो गए। जीन के नीचे मिस्र की फौज का निशान था। ये घोड़ा अहमद कमाल की अपनी फौज का था। हबशियों ने आंधी की वजह से ताकुब तर्क कर दिया था, वो वापस जिंदा पहुंच गए थे। पुरोहित ने फैसला दे दिया था कि लड़कियां आंधी में मारी गई होंगी, लिहाजा ताकुब में किसी को भेजना बेकार है। वक्त भी बहुत गुजर गया था, लेकिन रज्जब पर आफत नाजिल हो रही थी। उससे हबशी बार बार यही सवाल पूछते थे, लड़कियां कहाँ हैं? और वो कस्में खा खा कर कहता था कि मुझे मालूम नहीं। हबशियों ने उसे अजियतें देनी शुरू कर दी, तलवार की नोक से उसके जिस्म में जख्म करते और सवाल दोहराते थे। हबशियों ने उसके साथियों को भी दरख्तों के साथ बांध दिया और उनके साथ भी यही जालिमाना सलूक करने लगे। रज्जब को खुदा अपनी कौम और अपने मुल्क से गद्दारी की सजा दे रहा था। रात को भी उसे न खोला गया, उसका जिस्म छलनी हो चुका था। अहमद कमाल के खैमे में लड़की सोई हुई थी। वो सूरज गुरूब होने से पहले जागी थी। अहमद कमाल ने उसे खाना खिलाया था, उसके बाद वो फिर सो गई थी। उससे 2-3 कदम दूर अहमद कमाल सोया हुआ था। रात गुजरती जा रही थी, खैमे में दिया जल रहा था। अचानक लड़की की चीख निकल गई। अहमद कमाल की आंख खुल गई। लड़की बैठ गई थी, उसका जिस्म कांप रहा था, चेहरे पर घबराहट थी। अहमद कमाल उसके करीब हो गया। लड़की तेजी से सरक कर उसके साथ लग गई और रोते हुए बोली, उनसे बचाओ, वो मुझे मगरमच्छों के आगे फेंक रहे हैं, वो मेरा सर काटने लगे हैं। कौन? लड़की ने डरे हुए लहजे में कहा, वो यहाँ आए थे। अहमद कमाल को हबशियों की कुर्बानी का इल्म था। उसे शक हुआ कि इसे शायद कुर्बानी के लिए ले जाया जा रहा था। उसने लड़की से पूछा तो लड़की ने बाजू अहमद कमाल के गले में डाल दिए। कहने लगी, मत पूछो, मैं ख्वाब देख रही थी। अहमद कमाल देख रहा था कि वो तो बहुत ही डरी हुई है। उसने उसे तसल्लियां दी और यकीन दिलाया कि यहाँ उसे उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। लड़की ने कहा, मैं सो नहीं सकूंगी, तुम मेरे साथ बातें नहीं कर सकते, मैं अकेली जाग नहीं सकूंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। अहमद कमाल ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जागता रहूंगा। उसने लड़की के सर पर हाथ फेर कर कहा, जब तक मेरे पास हो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसने इस पर अमल करके भी दिखाया। लड़की के साथ उसने हबशियों के मुताल्लिक या उसके मुताल्लिक कोई बात न पूछी। उसे तुर्की और मिस्र की बातें सुनाता रहा। लड़की उसके साथ लगी बैठी थी। अहमद कमाल का लबो लहजा शुगुफ्ता था। उसने लड़की का खौफ दूर कर दिया और लड़की सो गई।
लड़की की आंख खुली तो सुबह तुलू हो रही थी। उसने देखा कि अहमद कमाल नमाज पढ़ रहा था। वो उसे देखती रही। अहमद कमाल ने दुआ के लिए हाथ उठाए और आंखें बंद कर ली। लड़की उसके चेहरे पर नजरें जमाए बैठी थी। अहमद कमाल फारिग हुआ तो लड़की ने पूछा, तुमने खुदा से क्या मांगा? अहमद कमाल ने जवाब दिया, बदी के मुकाबले की हिम्मत। लड़की ने कहा, तुमने खुदा से कभी सोना और खूबसूरत बीवी नहीं मांगी? अहमद कमाल ने कहा, ये दोनों चीजें खुदा ने बगैर मांगे मुझे दे दी थी, लेकिन इन पर मेरा कोई हक नहीं। ये शायद खुदा ने मेरा इम्तिहान लेना चाहा था। तुम्हें यकीन है कि खुदा ने तुम्हें बदी का मुकाबला करने की हिम्मत दी है? अहमद कमाल ने जवाब दिया, तुमने देखा नहीं, तुम्हारा सोना और तुम्हारा हुस्न मुझे अपनी राह से हटा नहीं सकेगा। ये मेरी कोशिश और अल्लाह की देन है। लड़की ने कहा, क्या खुदा गुनाह माफ कर देता है? अहमद कमाल ने जवाब दिया, हाँ, हमारा खुदा गुनाह माफ कर दिया करता है, शर्त यह है कि गुनाह बार बार न किया जाए। लड़की ने सर झुका लिया। अहमद कमाल ने जब उसकी सिसकियां सुनी तो उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो रो रही थी। लड़की ने अहमद कमाल का हाथ पकड़ लिया और उसे कई बार चूमा। अहमद कमाल ने अपना हाथ खींच लिया। लड़की ने कहा, आज हम जुदा हो जाएंगे, तुम मुझे काहिरा भेज दो, मैं अब आजाद नहीं हो सकूंगी। मेरा दिल मजबूर कर रहा है कि तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं, फिर तुम्हें बताऊंगी कि मैं अब क्या हूं। अहमद कमाल ने कहा, हमारी रवानगी का वक्त हो गया है, मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं इतनी नाजुक और इतनी खतरनाक जिम्मेदारी किसी और को नहीं सौंप सकता। लड़की बोली, ये नहीं सुनोगे कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं? अहमद कमाल ने कहा, उठो, ये सुनना मेरा काम नहीं, और वो खैमे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद काहिरा की समत 6 घोड़े जा रहे थे। एक पर अहमद कमाल था, उसके पीछे दूसरे घोड़े पर लड़की थी, उसके पीछे पहलू ब पहलू 4 घोड़े मुहाफिजों के साथ थे, और उनके पीछे एक ऊंट जिस पर सफर का सामान, पानी और खुराक वगैरह जा रही थी। काहिरा तक कमोबेश 36 घंटों का सफर था। लड़की ने 2 मरतबा अपना घोड़ा उसके पहलू में कर लिया, और दोनों मरतबा अहमद कमाल ने उसे कहा कि वो अपना घोड़ा उसके और मुहाफिजों के दरमियान में रखे। इसके सिवा उसने लड़की के साथ कोई बात न की। सूरज गुरूब होने के बाद अहमद कमाल ने काफिले को रोक लिया और पड़ाव का हुक्म दिया। रात लड़की को अहमद कमाल ने अपने खैमे में सुलाया। उसने दिया जलता रखा। वो गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी आंख खुल गई। किसी ने उसके माथे पर हाथ फेरा था। उसने लड़की को अपने पास बैठे देखा। लड़की का हाथ उसके माथे पर था। अहमद कमाल तेजी से उठकर बैठ गया। उसने देखा कि लड़की के आंसू बह रहे थे। उसने अहमद कमाल का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और उसे चूम कर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। अहमद कमाल उसे देखता रहा। लड़की ने आंसू पोंछकर कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन हूं। तुम्हारे मुल्क में जासूसी के लिए और तुम्हारे बड़े बड़े हाकिमों को आपस में टकराने के लिए और सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का इंतजाम करने के लिए फलस्तीन से आई हूं, लेकिन अब मेरे दिल से दुश्मनी निकल गई है। अहमद कमाल ने कहा, क्यों? तुम बुज़दिल लड़की हो, अपनी कौम से गद्दारी कर रही हो। सूली पर खड़े होकर भी कहो कि मैं सलीब पर कुर्बान हो रही हूं। उसने कहा, इसकी वजह सुन लो। तुम पहले मर्द हो जिसने मेरे हुस्न और मेरी जवानी को काबिल नफरत चीज समझकर ठुकराया है, वरना क्या अपने क्या बेगाने मुझे खिलौना समझते रहे। मैंने भी इसी को जिंदगी का मकसद समझा कि मर्दों के साथ खेलो, धोखे दो और ऐश करो। मेरी तरबियत ही इसी मकसद के तहत हुई थी। जिसे तुम लोग बेहयाई कहते हो, वो मेरे लिए एक फन है, एक हथियार है। मुझे नहीं मालूम कि मजहब क्या है और खुदा के अहकाम क्या हैं। सिर्फ सलीब जिसके मुताल्लिक मुझे बचपन में जहन नशीन कराया गया था कि ये खुदा की दी हुई निशानी है और ये ईसाइयत की अजमत की अलामत है, और ये कि सारी दुनिया पर हुक्मरानी का हक सिर्फ सलीब के पुजारियों को हासिल है, और ये कि मुसलमान सलीब के दुश्मन हैं। इन्हें अगर जिंदा रहना है तो सलीबियों के कदमों में रहकर जिंदा रहें। मैं इन्हीं चंद एक बातों को मजहब की बुनियादी उसूल समझती रही। मुझे मुसलमानों की जड़ें काटने की तरबियत दी गई थी। इसे भी मजहबी फरीजा कहा गया। लड़की ने पूछा, क्या तुम अपने एक सालार रज्जब को जानते हो? अहमद कमाल ने कहा, वो खलीफा के मुहाफिज दस्तों का सालार है। वो भी सुडानियों के हमले की साजिश में शामिल था। लड़की ने पूछा, अब कहाँ है? अहमद कमाल ने कहा, मालूम नहीं, मुझे सिर्फ ये हुक्म मिला है कि रज्जब फौज से भगोड़ा हो गया है। जहां कहीं नजर आए उसे पकड़ लो और भागे तो तीर मारो और उसे खत्म कर दो। लड़की ने कहा, मैं बताऊं वो कहाँ है? वो सूडान में हबशियों के पास है। वहां एक खुशनुमा जगह है। वहां हबशी लड़कियों को देवता के आगे कुर्बान करते हैं। रज्जब वहां है। मैं जानती हूँ वो फौज का भगोड़ा है। हम 3 लड़कियां उसके साथ फलस्तीन से आई हैं। अहमद कमाल ने पूछा, बाकी 2 कहाँ हैं? लड़की ने आह भरी और कहा, वो मर गई हैं। उन्हीं की मौत ने मुझे बदल डाला है। लड़की ने अहमद कमाल को एक लंबी कहानी की तरह सुनाया कि वो किस तरह फलस्तीन से रज्जब के साथ आई थी, किस तरह हबशियों ने उनमें से 2 लड़कियों को देवता के नाम पर ज़िबह करना चाहा। रज्जब उन्हें बचा न सका। किस तरह वो वहां से भागी और रास्ते में 2 लड़कियां किस तरह आंधी में मारी गईं। उसने कहा, मैं अपने आप को शहजादी समझती थी। मैंने बादशाहों के दिलों पर हुक्मरानी की है। मैंने कभी सोचा भी न था कि खुदा भी है और मौत भी है। मुझे गुनाहों में डुबोया गया और मैं डूबती चली गई। अजीब लज्जत थी इस डूबने में। मगर मुझे वो मगरमच्छ दिखाए गए जिनके आगे ज़िबह की हुई लड़कियों के जिस्म फेंके जाते हैं।
मगरमच्छ पानी के किनारे सोए हुए थे। उनके भद्दे और मकरूह जिस्म देख कर मैं कांप गई। वो मेरे इस जिस्म को, जिसने बादशाहों के सर झुकाए थे, इन मगरमच्छों की खुराक बनाना चाहते थे। मैंने वो बदसूरत स्याह काले हबशी देखे जो मेरा सर मेरे जिस्म से अलग करने के लिए आ गए थे। मौत के परों की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। मेरी रग रग बेदार हो गई। मेरे अंदर से मुझे आवाज सुनाई दी, अपने हुस्न और इतने दिलनशीं जिस्म का अंजाम देख। हम जान की बाजी लगाकर अपने घर से निकली थीं। हमें ये कहकर रज्जब के साथ फलस्तीन भेजा गया था कि ये शख्स हमारी हिफाजत करेगा, लेकिन उस शख्स ने मेरे साथ दस्त दराजी की। हम वहां से भागी। आंधी में घोड़े बेकाबू हो गए और भाग उठे। हमारे लिए सहरा में कोई पनाह नहीं थी। हम आंधी और घोड़ों के रहमो करम पर थीं। पहले एक लड़की गिरी। मैंने उसे घोड़े से नीचे आते देखा। फिर दूसरी लड़की घोड़े से गिरी तो पांव रिकाब में फंस जाने की वजह से घोड़े ने उसे 2 मील से ज्यादा फासले तक घसीटा। उसकी चीखें मेरा जिगर चाक कर रही थी। मैं अब भी उसकी चीखें सुन रही हूँ। जब तक जिंदा रहूंगी ये चीखें सुनती रहूंगी। फिर वो लड़की लाश बन गई। घोड़ा साथ साथ दौड़ आ रहा था, मगर मेरे काबू में नहीं था। वो लड़की भी अपने घोड़े के साथ पीछे रह गई। मैं अब अकेली थी। मुझे खुदा ने इन 2 लड़कियों को मारकर बता दिया था कि मेरा अंजाम क्या होगा। वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत और शोख थीं। उनमें हुस्न का गुरूर भी था। उन्होंने भी बादशाहों को उंगलियों पर नचाया था, मगर ऐसी भयानक मौत मरी कि किसी को खबर तक न हुई। अब वो रेत की गुमनाम कब्रों में दफन हो गई हैं। मैं अकेली रह गई। आंधी के सन्नाटे मौत के कहे बन गए। मुझे अपने सर के ऊपर आगे पीछे दाएं और बाएं चुड़ैलें, बदरूहें, भूत और मौत के कहे सुनाई दे रहे थे। मैं बुद्धू और बेवकूफ लड़की नहीं हूँ। मैंने जान लिया है कि खुदा मुझे गुनाहों की सजा दे रहा है। ऐसी हैबतनाक मौत और ऐसी हौलनाक आंधी वो तुमने भी देखी है। मुझे खुदा याद आ गया। मैंने खुदा को बुलंद आवाज से पुकारा, रो रो कर गुनाहों से तौबा की और माफी मांगी। फिर मैं बेहोश हो गई और जब होश में आई तो मैं तुम्हारे कब्जे में थी। तुम्हारी गोरी रंगत देखकर मैं खुश हुई कि तुम यूरोपी और मैं फलस्तीन में हूँ। इसी धोखे में मैंने अपनी जबान में पूछा था कि क्या मैं फलस्तीन में हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं मुसलमानों के कब्जे में हूँ तो मेरा दिल बैठ गया। मैं आंधी से बचकर अपने दुश्मन के कब्जे में आ गई थी। मुसलमानों के मुतालिक मुझे बताया गया था कि औरतों के साथ दरिंदों जैसा सलूक करते हैं, लेकिन तुमने मेरे साथ वो सलूक किया जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। तुमने सोना ठुकरा दिया और तुमने मुझे भी ठुकरा दिया। मैं इस कदर खौफजदा थी कि मैं कहती थी कि खा कोई मिल जाए मुझे पनाह दे दे और मुझे सीने से लगा ले। तुम्हारे मुतालिक मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि तुम्हारा किरदार पाक है। मुझे ये तवक्को थी कि रात को तुम मुझे परेशान करोगे। मैं ख्वाब में भी मगरमच्छों, हबशियों और आंधी की दहशत देखती रही। मैं डर कर उठी तो तुमने मुझे सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह मुझे कहानियां सुनाकर मेरा खौफ दूर कर दिया। और जब रात गुजर गई तो मैंने जागते हुए तुम्हें खुदा के आगे सजदे में देखा। तुमने दुआ के लिए हाथ उठाए और आंखें बंद कर ली थीं, और उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर मुसर्रत, सुकून और नूर था। मैं इस शक में पड़ गई कि तुम इंसान नहीं फरिश्ता हो। कोई इंसान सोने और मुझ जैसी लड़की से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैंने तुम्हारे चेहरे पर जो सुकून और मुसर्रत देखी थी उसने मेरे आंसू निकाल दिए। मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि ये सुकून तुम्हें किसने दिया है। मैं तुम्हारे वजूद से इतनी मुतासिर हुई कि मैंने तुम्हें धोखे में रखना बहुत बड़ा गुनाह समझा। मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने मुताल्लिक हर एक बात बता दूंगी। इसके इवज मुझे ये किरदार और ये सुकून दे दो और मेरे दिल से वो दहशत उतार दो जो मुझे बड़ी ही तल्ख अजियत दे रही है। मगर तुमने मेरी बात न सुनी। तुम्हें फर्ज अजीज था। उसने अहमद कमाल के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, तुम शायद इसे भी धोखा समझो, लेकिन मेरे दिल की बात सुन लो। मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकूंगी। मैंने कल तुम्हें गुनाह की दावत देते हुए कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझो, मगर अब मैं सारी उम्र के लिए तुम्हारे कदमों में बैठी रहूंगी। मुझे अपनी लौंडी बना लो और उसके इवज मुझे वो सुकून दे दो जो मैंने नमाज के वक्त तुम्हारे चेहरे पर देखा था। अहमद कमाल ने कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। मेरी मजबूरी यह है कि मैं अपनी कौम को और अपनी फौज को धोखा नहीं दे सकता। तुम मेरे पास अमानत हो, मैं खयानत नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे साथ जो सलूक किया वो मेरा फर्ज था। ये फर्ज उस वक्त खत्म होगा जब मैं तुम्हें मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दूंगा और वो मुझे हुक्म देगा कि अहमद कमाल तुम वापस चले जाओ। वो उसे धोखा नहीं दे रही थी। उसने रोते हुए कहा, तुम्हारे हाकिम जब मुझे सजाए मौत देंगे तो तुम मेरा हाथ पकड़ कर रखना। अब यही एक ख्वाहिश है। मैं तुम्हें ऐसी बात नहीं कहूंगी कि मुझे फलस्तीन पहुंचा दो। मैं तुम्हारे फर्ज की रुकावट नहीं बनना चाहती। मुझे सिर्फ इतना कह दो कि मैंने तुम्हारा प्यार कबूल कर लिया है। मैं तुम्हें ये भी नहीं कहूंगा कि मुझे अपनी बीवी बना लो, क्योंकि मैं एक नापाक लड़की हूँ। मुझे तरबियत देने वालों ने पत्थर बना दिया था। मैं ये भी समझती थी कि मेरे अंदर इंसानी जज्बात नहीं रहे, लेकिन खुदा ने मुझे बड़े ही पुरहौल तरीके से समझा दिया कि इंसान पत्थर नहीं बन सकता, और वो एक न एक दिन मजबूर होकर किसी से पूछता है कि सीधा रास्ता कौन सा है। रात गुजरती जा रही थी और वो दोनों बातें कर रहे थे।
अहमद कमाल ने उससे पूछा, तुम जैसी लड़की को हमारे मुल्क में भेजकर उनसे क्या काम लिया जाता है? लड़की ने कहा, बहुत से काम कराए जाते हैं। बास को मुसलमान उमरा के हरमों में मुसलमान के रूप में दाखिल कर दिया जाता है, जहां वो तरबियत के मुताबिक उमरा और वुज़रा पर गालिब आ जाती हैं। उनसे सलीबियों के पसंद के अफराद को ओहदे दिलाती हैं। जो हाकिम सलीबियों के खिलाफ हो उसके खिलाफ कार्रवाइयां करवाती हैं। मुसलमान लड़कियां इतनी चालाक नहीं होती, उन्हें अपनी खूबसूरती पर नाज होता है। वो हरमों के लिए मुंतखब तो हो जाती हैं, लेकिन एक ईसाई या यहूदी लड़की उन्हें बेकार करके अपना गुलाम बना लेती है। इस वक्त तक इस्लामी हुकूमत के अमीरों और वजीरों और कलादारों की आधी तादाद के फैसले मेरी कौम के हक में होते हैं। लड़कियों का एक गिरोह और भी है। ये लड़कियां इस्लामी नाम से मुसलमानों की बीवियां बन जाती हैं। उनका काम यह है कि अच्छे दर्जे के मुसलमान घरानों की लड़कियों के दिमाग और किरदार खराब करती रहें, उनके लड़कों को बदी के रास्ते पर डालती और शरीफ घरानों की लड़कियों और लड़कों के माशके कराती हैं। मुझ जैसी सलीबी लड़कियां चोरी छुपे तुम्हारे ऐसे हाकिमों के पास जाती हैं जो हमारे हाथ में खेल रहे होते हैं। इन हाकिमों को सोने के सिक्कों की सूरत में मुआवजा मिलता रहता है। वो मुझ जैसी लड़कियों को हिफाजत में ऐसे तरीके से रखते हैं जिनसे उन पर जरा सा भी शक नहीं होता। ये लड़कियां आला दर्जे के हाकिमों के दरमियान रकाबत और गलत फहमियां पैदा करती और सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ नापसंदीदगी पैदा करती हैं। मुझे 2 लड़कियों के साथ इसी काम के लिए रज्जब के हवाले किया गया था। वो उसे सलीबियों की दरपर्दा कार्रवाइयों और मुसलमानों की ईमान फरोशी की तफसील सुनाती रही और अहमद कमाल सुनता रहा। दूसरे दिन सूरज गुरूब होने से बहुत पहले ये काफिला काहिरा पहुंच गया। अहमद कमाल अली बिन सुफियान के पास गया और उसे लड़की के मुताल्लिक तमाम तर रिपोर्ट देकर लड़की उसके हवाले कर दी। उसने ये भी बताया कि रज्जब हबशियों के पास है और उसने उस जगह को अड्डा बना रखा है जहां हबशी लड़कियों की कुर्बानी दिया करते थे। अहमद कमाल ने यह भी कहा कि अगर उसे हुक्म दिया जाए तो वो रज्जब को जिंदा या मुर्दा वहां से ला सकता है। अली बिन सुफियान ने ऐसा हुक्म न दिया क्योंकि इस मकसद के लिए उसके पास तरबियत याफ्ता फौजी थे। अहमद कमाल ने वो तरीका बता दिया जिससे रज्जब तक पहुंचा जा सकता था। उसने ये तरीका लड़की की सुनाई हुई बातों के मुताबिक सोचा था। अली बिन सुफियान पहले ही एक पार्टी सूडान भेज चुका था। उसने लड़की से तफ्तीश करने से पहले 4 निहायत ज़हीन कमानदार बुलाए और उन्हें अहमद कमाल के हवाले करके हुक्म दिया कि इसके मुताबिक वो सूडान फौरन चले जाएं और रज्जब को लाने की कोशिश करें। उसने अहमद कमाल को वापसी से पहले आराम के लिए भेज दिया और लड़की को अपने पास बुलाया। लड़की से उसने पहला सवाल किया तो लड़की ने जवाब दिया, अहमद कमाल मेरे सामने बैठा रहेगा तो जो पूछोगे बता दूंगी, वरना जबान नहीं खोलूंगी, खा जल्लाद के हवाले कर दो। अली बिन सुफियान ने अहमद कमाल को बुलाकर उसके सामने बिठा दिया। लड़की ने मुस्कुराकर बोलना शुरू कर दिया। उसने कुछ भी न छुपाया और आखिर में कहा, मुझे सजा देनी है तो मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं अहमद कमाल के हाथ से मरना चाहती हूँ। उसने तफसील से बता दिया कि वो अहमद कमाल की मुरीद क्यों बन गई है। अली बिन सुफियान ने लड़की को कैद में डालने के बजाय अहमद कमाल की तहवील में रहने दिया और सुल्तान अयूबी के पास चला गया। उसे लड़की का सारा बयान सुनाया। उसने कहा, आपका मोतमिद फैजुल फातिमी हमारा दुश्मन है। लड़कियों को उसके पास आना था। सुल्तान अयूबी का फौरी रद्द अमल ये था, वो झूठ बकती है, तुम्हें गुमराह कर रही है, फैजुल फातिमी ऐसा हाकिम नहीं। अली बिन सुफियान ने कहा, अमीर मोहतरम आप भूल गए हैं कि फातिमी और फिदाइयों का गहरा रिश्ता है, ये लोग आपके वफादार नहीं हैं। सुल्तान अयूबी गहरी सोच में खो गया। वो गालिबन सोच रहा था कि किस पर भरोसा करे। कुछ देर बाद उसने कहा कि अली मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि फैजुल फातिमी को गिरफ्तार करो। कोई ऐसी तरकीब करो कि वो जुर्म करता पकड़ा जाए। मैं उसे मौके पर पकड़ना चाहता हूँ और ये मौका पैदा करना तुम्हारा काम है। वो जंग जैसे अहम शोबे का हाकिम है, सल्तनत के जंगी राज उसके पास हैं। मुझे बहुत जल्दी ये सबूत चाहिए कि वो ऐसे घिनौने जुर्म का मुजरिम है या नहीं। अली बिन सुफियान सुराग रसानी का माहिर था। खुदा ने उसे दिमाग ही ऐसा दिया था। उसने एक तरकीब सोच ली और सुल्तान अयूबी से कहा, लड़की जिन मराहिल से गुजर कर आई है उनकी दहशत ने इसका दिमाग माउफ कर दिया है और वो अहमद कमाल के लिए जज्बाती हो गई है, क्योंकि इस शख्स ने उसे दहशत से बचाया और ऐसा सलूक किया कि लड़की उसके बगैर बात ही नहीं करती। मुझे उम्मीद है कि मैं इस लड़की को इस्तेमाल कर सकूंगा। सुल्तान अयूबी ने कहा, कोशिश कर देखो, लेकिन याद रखो मैं वाज़े सबूत और शहादत के बगैर तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि फैजुल फातिमी को गिरफ्तार कर लो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो भी दुश्मन के हाथों में खेल रहा है। अली बिन सुफियान लड़की के पास गया और उसे अपना मुद्दा बताया। लड़की ने कहा, अहमद कमाल कहे तो मैं आग में भी कूद जाऊंगी। अहमद कमाल ने उसे कहा कि जैसे ये कहते हैं वैसे करो, इनकी बात समझ लो। लड़की ने पूछा, इसका मुझे क्या इनाम मिलेगा? अली बिन सुफियान ने कहा, तुम्हें पूरी हिफाजत से फलस्तीन के कला शोबक में पहुंचा दिया जाएगा और यहाँ तुम्हें पूरी इज्जत से रखा जाएगा। लड़की ने कहा, नहीं, ये इनाम बहुत थोड़ा है, मुझे मुंह मांगा इनाम दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी और अहमद कमाल मेरे साथ शादी करे। अहमद कमाल ने साफ इनकार कर दिया। अली बिन सुफियान उसे बाहर ले गया। अहमद कमाल ने कहा, ये बेशक इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन मैं इसे फिर भी इस्लाम का दुश्मन समझूंगा।
अली बिन सुफियान ने उसे कहा कि मुल्क और कौम की सलामती की खातिर तुम्हें यह कुर्बानी देनी होगी। अहमद कमाल मान गया। उसने अंदर जाकर लड़की से कहा, मैं चूंकि तुम्हें अभी तक बेएतबार लड़की समझ रहा हूं, इसलिए शादी से इनकार किया है। अगर तुम साबित कर दो कि तुम्हारे दिल में मेरे मजहब के लिए कुर्बानी का जज्बा है तो मैं तमाम उम्र तुम्हारा गुलाम रहूंगा। लड़की ने अली बिन सुफियान से कहा, कहो मुझे क्या करना है, मैं भी देख लूं कि मुसलमान अपने वादे के कितने पक्के होते हैं। मेरी एक शर्त यह भी है कि अहमद कमाल मेरे साथ रहेगा। अली बिन सुफियान ने उसकी ये शर्त भी मान ली और अपने एक अहलकार को बुलाकर अहमद कमाल और लड़की के लिए रिहाइश का इंतजाम का हुक्म दे दिया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और लड़की को अहमद कमाल की मौजूदगी में बताने लगा कि उसे क्या करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए।